ایسی بظاہر صورتحال نہیں ہے، لیکن ملک کی سیاست ہے، اس میں حالات بدل بھی سکتے ہیں اور ایک لخت بھی بدل سکتے ہیں۔ 20ویں امینڈمنٹ تھی، اس میں بہت سی چیزیں جو ہم نے نکالی ہیں۔ اور دوسری جانب وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ فی الحال مجھے لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی اپنے دشمن خود ہیں، پی ٹی آئی کو جب بھی بات کرنی ہوگی وہ ہمارے ساتھ ہی کرنی ہوگی۔ یہ ان کا بیان سامنے آیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ سینئر تجزیہ کار خالد قیوم صاحب۔ خالد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ خالد صاحب، مرنے مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اب پی ٹی آئی نے ایک نیا علائی عمل اختیار کر لیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ کارگر ثابت ہوگی؟ اور اب دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بات وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے عمران خان کے دوست ہیں، تو اب وہ آ گئے ہیں، تو اس صورتحال میں کوئی سپورٹ ملے گی ان کو؟ دیکھیے کہ جس طرح وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے سر پر کفن باندھنے کی باتیں کی ہیں اور بڑی جو ہیں وہ زوردار باتیں کی ہیں، اور بڑکیں جن کو حکومتی وزراء کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بڑکیں لگائی جا رہی ہیں، تو اللہ کرے جس زوردار انداز میں علی امین گنڈا پور نے اعلانات کیے ہیں، یہ آوازیں جو ہیں یہ کہیں اسلام آباد آ کر پہلے کی طرح خاموشی نہ اختیار کر لیں۔ اسی طرح اگر قائم رہیں گی تو پھر شاید ان کو ان کے مطلوبہ جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو سکیں اور وہ ڈی چوک میں بھی پہنچ سکیں، اور وہاں سے پھر نتائج بھی جو ہیں اگر وہ پہنچ گئے تو کسی حد تک جو ہیں وہ مل سکتے ہیں۔ اور دوسرا دیکھیے جو ٹرمپ کی بات آپ نے کی کہ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے سے پی ٹی آئی نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی امیدیں جو ہیں وہ بستہ کر لی۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ٹرمپ سے جو امیدیں لگائی گئی ہیں، یہ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کا جو سوچ ہے یا ان کا جو موقف ہے یا ان کا جو امریکہ کے حوالے سے جو بیانیہ تھا، اس کی یہ نفی ہے۔ اچھا۔ اور پی ٹی آئی کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جدوجہد کی ضرورت ہے، سٹرگل کی ضرورت ہے، اور سیاست کرنے کی ضرورت ہے، اور سیاسی لیڈرشپ جو ہے اس کو آگے لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہی میں سمجھتا ہوں جس طرح وکلاء کی جو لیڈرشپ اس وقت پی ٹی آئی میں پر براجمان ہے، اب وہ تو مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، اس میں کچھ شک و شبہ کی بات ہے۔ اب جو سیاسی لیڈرشپ ہے، سیاسی مائنڈ سیٹ ہے، اب وہی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا راستہ بنا سکتا ہے، اب وہی ان کو باہر نکال سکتا ہے، اور پی ٹی آئی کو مطلوبہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی بڑھ کر دیکھیے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس کو تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ تقسیم کا شکار ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے؟ کیونکہ ایک جانب سے کچھ بات کی جاتی ہے، دوسری جانب سے کوئی اور بات کی جاتی ہے۔ خاص طور پر اگر علی امین گنڈا پور کی بات کریں تو ان کے حوالے سے تو جس طرح سے خواجہ آصف نے کہا کہ یہ ان کے جو بیانات ہیں صرف بڑکے ہیں، اور اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ یہ کہہ چکے ہیں کہ علی امین گنڈا پور ان کے خیال میں دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں۔ تو کیا اس میں دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کا ایجنڈا بھی لے کر چل رہے ہیں، اور اس ایجنڈے کے اصول کے لیے ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی روابط ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ دونوں اطراف سے سرخرو ہوں۔ لیکن دیکھیے کہ یہ تقسیم جو ہے یہ نیا معاملہ نہیں، تقسیم تو ہر سیاسی جماعت کے اندر ہوتی ہے، اور ماضی کی اگر تحریکیں آپ دیکھیں تو اس میں بھی جب ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے ان کی حکومت ختم کی گئی اور ان کو جب پھانسی، تو اس وقت تک پیپلز پارٹی اس وقت بڑی پاکستان کی مقبول ترین جماعت تھی، لیکن ذوالفقار بانی جو پیپلز پارٹی تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کی پھانسی تک پیپلز پارٹی بھی کوئی بڑا احتجاج یا تحریک چلانے میں ناکام رہی تھی۔ اور اس وقت بھی جس طرح اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ یا تو خاموش ہو رہے ہیں یا چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے ہیں، یا پھر کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی جو صف اول کی جو لیڈرشپ تھی اس میں سے بڑے لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر کے چلے گئے تھے،
पार्टी छोड़ गए थे या घरों में बैठ गए थे। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में जो है वो पीटीआई को एक मायूसी का भी सामना है, पीटीआई के वर्कर को भी सामना है, पीटीआई की क़यादत को भी मायूसी का सामना है। तो ये और एक दबाव जो है वो एक 26वीं आईनी तरमीम जो है जी 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 इसकी मंजूरी से भी जो है वो एक दबाव जो है वो पीटीआई पर आया है, पीटीआई की क़यादत पर आया है। क्योंकि पीटीआई ने जिस तरह ट्रंप से उम्मीदें लगाई हैं, इसी तरह पाकिस्तान की अदलिया से भी जो है वो तो ये जो चैलेंज करने की बातें उम्मीदें जो हैं वो लगा ली थी। चैलेंज करने की बातें हो रही हैं पीटीआई की जानिब से, कोई भी पासा सही पलटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, उनके हक में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब आप क्या देखते हैं कि वकला की तहरीक भी है, फिर उनकी तरफ से भी 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने की बातें हो रही हैं, लेकिन उसमें कोई वो हकीकत का रूप नहीं धार रही है, वो इस वक्त तक सिर्फ बातें ही हैं, कोई दावे ही हैं। देखिए कि जब तक कोई पीटीआई की जो क़यादत है या पीटीआई जो है, अगर आप देखें तो मई 2022 से अब तक जो है वो पीटीआई को बड़ा इत्जाज उस तरह नहीं कर सकी, हुकूमत पर कोई बड़ा दबाव जो है वो बढ़ाने में जो है वो नाकाम रही है, कामयाब नहीं हो सकी। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि स्वाबी में जलसा कर लेना कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं है। अच्छा। स्वाबी में जलसे से हुकूमत पर कोई दबाव नहीं आएगा। हुकूमत पर दबाव उस वक्त आएगा जब पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर कोई पीटीआई को बड़ा पावर शो करती है, या लाहौर के अंदर बड़ा कोई इत्तेजाज जब बड़ी रैली निकालती है, तो क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो भी तहरीकें आज तक उठी हैं, वो एमआरडी की तहरीक हो, वो एआरडी की तहरीक हो, वो हत्ता के क़याम पाकिस्तान की तहरीक हो, करारदाद पाकिस्तान लाहौर में मंजूर हुई, तो वो तहरीकें जो हैं वो लाहौर से उठती ऐसा ही है। लेकिन लाहौर से उठने वाली तहरीक फिर पूरे है? मुल्क को अपनी लपेट में लेती है। तो यहाँ पर तो उनकी जो लीडरशिप है पीटीआई की, वो तो अपने सूबे में आती ही नहीं। क्या वजह है? यहाँ के सदर तो केपी में बैठे हैं, क्यों तकसीम दिखाई दे रही है? क्योंकि आधी जो लीडरशिप है वो एहतजाजी, ये जो नई हिकमत अमली अपनाई जा रही है इसके हक में है, सड़कों पर एहतजाज करने के साथ है, लेकिन जो आधी लीडरशिप है वो ये बात कर रही है कि जो एहतजाजी हिकमत अमली है ये नहीं अपनाई जानी चाहिए, अभी फिलहाल सड़कों पर नहीं आना चाहिए। तो क्यों तकसीम है? किस चीज़ का फुकदान है? जो अभी ख़ासतौर पर वर्कर है वो खासा परेशान है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, उनका तो यही बस चले कि वो सड़कों पर आए, धरना दें और वहीं रुक जाएं जब तक बानी की रिहाई नहीं होती। देखिए पीटीआई की जो क़यादत, पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर वाज़ेह हिकमत अमली एहतजाज के हवाले से ना अख्तियार करने पर और एहतजाज ना करने पर तनकीद कर रही है, वो भी जब एहतजाज का ऐलान होता है तो वो भी डी चौक तो वो भी नहीं पहुंचते, वो भी घरों में बैठकर ही जो है पार्टी पर या अली अमीन गंडापुर या दूसरी क़यादत पर जो है वो तनकीद करते हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए कि इसका पीटीआई को उस वक्त तक जो है वो हुकूमत पर बड़ा दबाव या प्रेशर नहीं डेवलप कर सकती जब तक पाकिस्तान की जो तमाम इस वक्त छोटी बड़ी अपोजिशन जमातें हैं उनको पीटीआई को साथ मिलाना होगा और एक ग्रैंड अलायंस जो है वो तश्कील देना होगा। जब तक देखिए कि अभी तक पीटीआई की सबसे बड़ी जो मैं नाकामी समझता हूँ वो ये है कि वो मौलाना फजलुर रहमान जेयूआई को साथ मिलाने में नाकाम रहे हैं, वो जमात इस्लामी को साथ मिलाने में नाकाम रहे हैं, वो महमूद खां अचकज़ई उनके साथ आए थे लेकिन उनको भी साइड लाइन उन्होंने कर दिया है। महमूद खां अचकज़ई भी उनके साथ नाराज़ हैं और बाकी जो छोटी अपोजिशन की जमातें हैं उनको भी वो साथ मिलाने में नाकाम रहे हैं। तो इस तरह अगर वो कोई ब्रेक थ्रू चाहते हैं या सियासत के अंदर कोई दबाव बढ़ाना चाहते हैं हुकूमत पर, अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं, तो फिर तमाम जो अपोजिशन है उसको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे करना होगा। जिस तरह माजी की तहरीकों में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त 10 लाख अफराद ने उनका इस्तकबाल किया था, उन्हें किसी और जमात को साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने
जो है वो MRD को आगे रखा, MRD की लीडरशिप को आगे रखा। जिस जमात के पास एक हलका था उसको भी मलक कासिम को साथ रखा, नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम को सबसे आगे रखा, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनको साथ रखा, और सारी जो उस वक्त की छोटी बड़ी लीडरशिप थी अपोजिशन की वो पीपल्स पार्टी के साथ थी। और फायदा अल्टीमेटली जो है वो बड़ी पार्टी को होता है, बड़ी पार्टी को होता है, जिस तरह पीपल्स पार्टी थी उन लीडरान। और ये इसी तरह की मैं समझता हूँ कि जो सियासी बसीरत या जो सियासी माइंड सेट है वाली लीडरशिप है उसको आगे लाने से पीटीआई के अंदर अब भी लोग ऐसे हैं। असद कैसर सियासी माइंड सेट वाले लोग हैं, डॉक्टर आरफ अलवी हैं, और दूसरे कई लोग हैं जिनको आप आगे लाकर जो है एक सियासी फजा पार्टी के लिए बेहतर बना सकते हैं। और टफ टाइम दे सकती है हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इसी हिकमत अमली पर काम करती है जिस पे आप बात कर रहे हैं कि मेन जो लीडरशिप है उसको सामने लाया जाए, हुकूमत को घर भेज सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर? देखिए सब कुछ मुमकिन है, और सियासत जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी होती है, पार्लियामेंट के बाहर भी होती है। और जब अदम इत्मीनान की तहरीक आई थी बानी पीटीआई के खिलाफ बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो उस वक्त जो पीडीएम का इत्तेहाद था उसमें मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ साहब की ये राय थी कि हमें, वो भी एक उस वक्त मायूसी की लहर से गुजर रहे थे, उनकी राय थी कि पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, इस्तीफ़े दे देने चाहिए। लेकिन जो सदर पाकिस्तान है पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी, उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। उनका कहना था कि हमें इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, हमें पार्लियामेंट में रहकर अपना रोल बनाना चाहिए और सियासी अमल का हिस्सा बनकर आईनी तरीके से, सियासी तरीके से अदम इत्मीनान के जरिए जो है वो पीटीआई की हुकूमत को निकालना चाहिए। तो फिर देखा कि एक अमल हुआ जिसमें फिर कामयाबी हुई। आखिर इख्तिताम इस पे करना चाहेंगे। मौलाना साहब ने अभी बयान दिया है, मौलाना कहते हैं कि अभी कोई रिहाई मुमकिन नज़र नहीं आती उनको बानी पीटीआई की, लेकिन मुल्की सियासत में किसी वक्त भी तब्दीली आ सकती है। ये किस चीज़ का है? ये बिल्कुल मौलाना ने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि सियासत किसी एक जगह पर कभी खड़ी नहीं रहती, सियासत बदलती है और हर रोज़ बदलती है। तो इसमें पीटीआई को भी चाहिए कि इस अमल से, सियासी अमल से फ़ायदा उठाए, सियासी कुव्वतों के साथ रवाबत बढ़ाए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक सियासी कुव्वत है, वो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है और पीटीआई की क़यादत जो है, लेकिन वो हुकूमत में शामिल नहीं। तो पीटीआई की क़यादत को जो है उनके साथ भी रवाबत जो है बढ़ाने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान से ज़्यादा तो सियासी दुश्मनी पीटीआई की किसी के साथ नहीं थी। अगर उनके साथ बैठ सकते हैं तो पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? पार्लियामेंट के अंदर भी एक अपना पीटीआई बड़ी जमात है, वहाँ भी अपना एक रोल जो है पीटीआई बना सकती है। सही है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है उस पर हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद क़यूम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमने गुफ्तगू की ओवरऑल सिचुएशन